हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल फिज़िक्स सब्जेक्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन फिज़िक्स लाइक मास्टर कैडर फिज़िक्स एग्ज़ाम और एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम लाइक गेट नेट और जैम, तो आप वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस में पार्टिकल फ़िज़िक्स ज़रूर इंक्लूड होता है। और पार्टिकल फ़िज़िक्स आपने बीएससी में भी करा है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और एमएससी में आप पूरा सब्जेक्ट पार्टिकल फ़िज़िक्स का करते हो। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ चूज़ करे हैं। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज जो है पार्टिकल फ़िज़िक्स की उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना। तो लेट अस स्टार्ट। The first question is, the secondary cosmic rays reaching the earth mainly consist of. Cosmic rays are those heavy particles or nuclei which originate from the outer space and they are continuously hitting us. Mainly they consist of pions, kaons and other heavy nuclei. These are called the hard component of X-rays, hard component of cosmic rays. When they pass through the Earth's atmosphere, they further decay into other lighter particles. Like first, the pions decay into gammas, which decay into electrons and positrons, or these kaons decays into muons. So these particles are called secondary cosmic rays or soft component of cosmic rays. So secondary cosmic rays mainly consist of muons, electrons and positrons. Answer of this question is A. Next question, which of the following particle is unstable? Out of these four, neutron is unstable and it decay like this, which is called negative beta decay. This is because neutron is somewhat heavier than proton, so it has a tendency to decay into proton through beta negative decay. Answer of this question is A. Next question is, the quark model content of neutron is. Neutron is a 3 quark combination particle and it consists of U and D quarks. So we know that U quark has a fractional charge plus 2 by 3 E and D quark has a fractional charge minus 1 by 3 E. So neutron total has a charge, it is neutral, it has charge equal to 0. It means 1 U and 2 D quarks. If we take this combination, then total charge will be 0. So neutron quark content is UDD. Answer is C. Next question, which of the following is not a boson? तो यहाँ पे देखो, pion is a meson and mesons are bosons. So pion boson है. Photon is a mediator of electromagnetic interactions and all the mediators, whether they are gluons, W plus minus or Z bosons or gravitons, they are bosons. Z naught is a mediator of weak interactions, it is also a boson. So only muon is left on. ठीक है, इसलिए म्यून जो है इट इज नॉट अ बोसॉन. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज वेक्टर bosons acquiring mass through spontaneous breaking of local symmetry is known as. So there are two types of symmetry breaking. One is spontaneous breaking of global symmetry and second is spontaneous breaking of local symmetry. In case of global symmetry breaking, we achieve this thing which is called Goldstone mechanism. In case of local symmetry breaking, the process is called Higgs mechanism and we obtain Higgs particle or Higgs boson in this process. So answer of this question is B.
Next question is the particles which mediate the force between the neutron and proton are neutrons and protons. They are called nucleons, and there exists strong force between the nucleons in the nucleus. And according to Yukawa theory, the mesons are the particles which are exchanged between the neutrons and protons within the nucleus. So neutron changes into a proton with exchange of pi negative meson. Similarly, one neutron changes into other neutron with exchange of pi naught meson. So mesons are the mediators in case of strong force or between the neutron and protons. Answer of this question is D. अगर आप हाई एनर्जी लेवल पे देखो तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स. इन बिटवीन द क्वार्क्स जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं दे आर कॉल्ड ग्लूऑन्स. तो अगर यहाँ पे क्वार्क्स आ जाता है कि क्वार्क्स के बीच में क्या मीडिएटर्स होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उसका आंसर होना था ग्लूऑन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल इज अ लेप्टॉन. यहाँ पे जो फोटोन है, फोटोन इज ए मीडिएटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, हमने पहले भी डिस्कस किया है. दिस इज अ बोसोन. न्यूट्रॉन इज अ फर्मियन और ये बेरियन फैमिली के अंदर आता है. पायोन जो है ये मेसोन्स होते हैं, ठीक है, मीन्स मिडल वेट पार्टिकल्स. और म्यून्स जो होते हैं दे आर लेप्टॉन्स, लाइट वेट पार्टिकल्स. तो लेप्टॉन्स टोटल 3 फैमिलीज हैं लेप्टॉन्स की. वन इज इलेक्ट्रॉन फैमिली, सेकंड इज म्यून फैमिली एंड थर्ड इज टॉन फैमिली. तो म्यून इज अ लेप्टॉन. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीटा पॉजिटिव डिके द रिकॉइलिंग न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो आर emitted in a plane or are emitted in a straight line, or recoiling nucleus moves in a direction out of plane of emission of beta negative particle and neutrino. D option है, the recoiling nucleus beta particle and anti neutrino are emitted in a plane. What is beta positive decay? In case of beta positive decay, proton in a nucleus converts into neutron with the emission of a positron which is called beta positive particle and neutrino. So यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रिनो emission हो रही है, so option D is incorrect क्योंकि यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो लिखा है. उसके बाद जिस न्यूक्लियस में के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस इज emitting E positive and nu E, their electron and neutrino they are emitted at some angle, and since these are very light particles, so जो रिकॉयल होती है न्यूक्लियस की that is very small, almost उसको neglect कर देते हैं. so it means यहाँ पे लिखा है रिकॉयलिंग न्यूक्लियस moves in a direction. तो मोशन मूव तो वो न्यूक्लियस करता ही नहीं क्योंकि न्यूक्लियस वेरी हैवी एज कम्पेयर टू positron and neutrino. So it means C option is also incorrect. The positron and neutrino they are emitted at some angle theta. So it means they are not emitted in a straight line. So option B is also incorrect. So correct answer is A. Recoiling nucleus, beta particle and neutrino emitted in a plane. Next question, choose which of the following statement is false. Proton and neutron form an isospin doublet. This is correct. Proton and neutron have isospin I equal to half, and third component of isospin, which is denoted by I3, is plus half for proton and minus half for neutron. Second statement, pi plus pi negative and pi naught form an isospin triplet. This is also correct. I is equal to 1 for these mesons, and third component of isospin I3 is equal to plus 1 for pi positive, minus 1 for pi negative and 0 for pi naught. Next, k plus k negative and k naught form an isospin triplet. This is incorrect. Out of the k mesons, k positive and k naught form one isospin doublet, and the remaining two particles k negative and k naught bar they form the other isospin doublet. There are 4 k mesons and
2 isospin doublets. So यहाँ पे ट्रिपलेट लिखा है, इट मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड. तो रिएक्शंस गिवन है, चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन है जो अलाउड है. देखो इस रिएक्शन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन हम ले लेते हैं. टाउ नेगेटिव जो है इट इज़ अ टाउ लेप्टॉन. तो अगर आप एल चेक करो लेप्टॉन नंबर, दोनों लेप्टॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड टाउन, इट इज़ ओके. इफ वी चेक द टाउन नंबर एल टाउ इज +1 फॉर tau negative and 0 for this. So L tau is not conserved in this reaction. Similarly Le अगर आप चेक करोगे इलेक्ट्रॉन नंबर, this is not conserved in this reaction, so this reaction is not allowed. सेकेंड रिएक्शन पे आ जाते हैं. सेकेंड रिएक्शन के अंदर अगर आप L चेक करोगे इलेक्ट्रॉन नंबर 1 both sides, this is correct. But if we check the tau number is +1 फॉर लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे टाउ इलेक्ट्रॉन है, इस साइड कोई टाउ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे एल टाउ 0 है. दिस इज नॉट कंजर्व्ड, सो सेकेंड रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट अलाउड. थर्ड रिएक्शन में आ जाते हैं. थर्ड रिएक्शन पे आप अगेन एल चेक करोगे तो 1 इस साइड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हो गया. ठीक है. अब एल टाउ चेक करो. एल टाउ इज इस साइड क्या है, एल टाउ 1, और इस साइड कोई टाउ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सो ये 0 हो गए सारे. सो अगेन एल टाउ इज नॉट कंजर्व्ड, सो दिस इज नॉट अलाउड. फर्स्ट भी अलाउड नहीं है, सेकंड भी, थर्ड भी. फोर्थ बची है. फोर्थ में चेक करते हैं, एल चेक करते हैं. इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी इलेक्ट्रॉन है, तो -1, ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों साइड 1 आ गया. ठीक. एल टाउ चेक करो. एल टाउ इज +1 फॉर लेफ्ट साइड. ठीक है. टाउन है, ये टाउन नहीं है, तो एल टाउ 0, इसका एल टाउ 0 हो गया. और ये टाउ पॉजिटिव है, टाउ न्यूट्रिनो, तो यहाँ पे 1 आएगा दोनों साइड. ठीक है. 1 आ गया. नाउ एल म्योन नंबर चेक करते हैं. इस साइड म्योन नहीं है तो 0 है, इस साइड म्योन है 1. ये एल जो एंटी न्यूट्रिनो है म्योन का, ये क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो इसका म्योन नंबर -1 आएगा और ये इसका 0 हो जाएगा. अगेन एल म्यू इज ऑल्सो कंजर्व. सो तीनों आपके इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हैं, विच इज ट्रू फॉर द रिएक्शन डी. सो डी रिएक्शन इज अलाउड. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वार्क कंटेंट ऑफ पाई पॉजिटिव इज. पाई पॉजिटिव मीजोन का क्वार्क कंटेंट बताना है. पायोन्स आर टू क्वार्क कॉम्बिनेशन पार्टिकल्स, और पाई मीन्स चार्ज +1 है, तो देखना है. अब यू डी बार अगर आप ले लो तो यू डी बार में क्या है, इसका चार्ज +2/3 है, और डी बार क्योंकि ये डी का एंटी क्वार्क हो गया, तो डी का चार्ज -1/3 होता है, इसका चार्ज +1/3 हो गया. सो इट मीन्स टोटल कितना हो गया, चार्ज 1 मीन्स ई प्लस ई. ठीक है. विच इज चार्ज ऑफ पाई प्लस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. दूसरे का इसमें चेक करो, इसका चार्ज 0 हो जाएगा, यू बार है, इसका चार्ज 0 हो जाएगा, और इसका चार्ज डी यू बार है, तो -1 हो जाएगा. सो ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूट्रिनो इज रॉन्ग. न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर लीस्ट इंटरेक्टिव पार्टिकल्स. इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जल्दी इंट्रैक्शन करके एनर्जी लूज़ नहीं करते किसी मीडियम के अंदर. सो इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, न्यूट्रिनो हैज़ स्पिन हाफ, दिस इज़ करेक्ट बिकॉज न्यूट्रिनोज आर फर्मियॉन्स. सेकेंड, न्यूट्रिनो हैज़ ऑलमोस्ट 0 मास, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. न्यूट्रिनो का मास 0 नहीं होता, बट इट इज़ ऑलमोस्ट 0. सी, न्यूट्रिनो डज नॉट इंटरेक्ट विद मैटर पायन, दिस इज़ करेक्ट क्योंकि न्यूट्रिनोज आर लीस्ट इंटरेक्टिव पार्टिकल्स. एंड जो डी ऑप्शन है, न्यूट्रिनो हैज़ चार्ज, दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज न्यूट्रिनोज चाहे वो इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रिनो है, टाउन न्यूट्रिनो है, या म्योन न्यूट्रिनो है, दीज आर 0 चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स. सो आंसर डी इज़ wrong. Next question is, the quarks
are supposed to exist in the following number of flavors. तो क्वार्क्स के कितने फ्लेवर होते हैं टोटल? वी नो दैट देयर आर टोटल 6 क्वार्क्स. आंसर इज सी. 6 क्वार्क्स कौन से हैं? UDS and C charm, top, and B beauty. So there are total 6 quarks. Next question, suppose that a neutron at rest in free space decays into proton and electron. The process would violate. अगर एक न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में डिके हो रहा है इन फ्री स्पेस, तो यहाँ पे किस चीज़ की वायलेशन होगी? देखो, ये जो वायलेशन है यहाँ पे इसकी हो रही है एंगुलर मोमेंटम की, क्योंकि अगर स्पिन चेक करो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज हाफ ऑन दिस साइड, न्यूट्रॉन इज अ फर्मियन एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी फर्मियन है, तो लेफ्ट साइड जो स्पिन है वो हाफ होगी और राइट साइड दोनों की स्पिन 1 + 1 1 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं रहेगा। दिस थिंग हैज़ गिवन एन आइडिया टू पॉली ने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दिया था, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई पार्टिकल मिसिंग है जिसकी स्पिन है -12। तो यहाँ दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि पॉली ने ये सोचा कि ये जो स्पिन है कंजर्व नहीं है, तो वो स्पिन कहाँ गई? इट मीन्स वहाँ पे कोई एक और पार्टिकल भी इमिट हुआ है एंड लेटर ऑन ही हैज़ गिवन नेम टू द पार्टिकल, तो उसने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दिया। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. That is all. If you like the video, please share and subscribe my channel.